Hello everyone, how are you? I hope you all are fit and fine and doing good at your place. I'm Monica from Other Senior Secondary School, Khaisirgarh. In previous classes, we cleared the concept of noun number and today we start 6th chapter about noun gender. Okay students, first we see a pictures in which a boy is stand, and in next picture a girls, and in third picture a baby, and fourth picture a book. Okay students, and boys तो मेल है या फीमेल? बॉयज किस में आएगा? मेल में, ठीक है. एंड गर्ल्स स्टैंड फॉर फीमेल, एंड बेबी कोई सा भी हो सकता है ना, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी. ओके स्टूडेंट्स, it stand both male and female. Books non-living things, and it neither male or nor female. See here, first boy. The noun boy stand for a male. Boy stand for male. And गर्ल्स क्या होती हैं? फीमेल्स. एंड बेबी तो गर्ल्स बॉयज़ कुछ भी हो सकता है ना, दोनों में से. तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा? द नाउन बेबी कैन बी यूज्ड फॉर ए मेल और फीमेल पर्सन. एंड बुक्स, द नाउन बुक्स इज ए नॉन लिविंग थिंग्स. निर्जीव वस्तु जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, ठीक है. एंड इज नाइदर मेल और नॉर फीमेल. तो ये ना तो मेल के अंदर आएगी और ना ही फीमेल के अंदर आएगी, ठीक है. नेक्स्ट, मैस्कुलिन जेंडर मीन्स ए नाउन दैट स्टैंड फॉर ए मेल is of the masculine genders in which male person are include. Any names, person names, animal names. It's for example boy किस में आएंगे? मेल में. man and ox, all are included in males, that is called masculine gender. And next, feminine gender, a noun that stand for a female is of the feminine gender. It means in any names that represent a female, all are included in feminine genders. For example, girls, women, cows. Okay students, girls, women and cows are example of feminine. That's all are included in females. And next, common gender means a noun that may be either male or female is of the common gender. कॉमन जेंडर के अंदर मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल टीचर, डॉक्टर,
स्टूडेंट एंड फ्रेंड। ये कैसे? क्योंकि टीचर में सर भी हो सकता है और मैडम भी हो सकते हैं, तो ये मेल भी हो जाएगा और फीमेल भी। तो टीचर एक ऐसा नेम है जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों एग्जिस्ट हो रहे हैं। तो ये किस में आएगा? कॉमन नाउन में, कॉमन जेंडर के अंदर, ठीक है। डॉक्टर, डॉक्टर के अंदर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। स्टूडेंट्स में भी बॉयज़ गर्ल्स दोनों होते हैं ना, तो फिर ये स्टूडेंट जो नेम है वो किस में आएगा? कॉमन नाउन में। फ्रेंड्स में गर्ल्स भी हो सकती है, बॉयज़ भी हो सकता है, जो फीमेल मेल दोनों के अंदर आएंगे ना, तो ये आएगी कॉमन जेंडर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज मैस्कुलिन जेंडर, in which male are includes, and second is feminine genders in which females are includes, and third is common gender in which either male or females are includes, and its example teachers, doctors, students and friends. Next gender is neuter gender. It means a noun that is non-living and is neither male nor female. Each of the neuter gender. इसके अंदर ना तो मेल आएंगे और ना ही फीमेल, only that things that are non-living. For example, stone, stone, books, house, river, door and pens. Here all things are non-living, so they are not included in male and female, and it's all are called neuter genders. Next, a collective noun is also regarded as a neuter gender. कलेक्टिव नाउन भी किस में आएगा? न्यूटर जेंडर। कलेक्टिव नाउन कौन सा होता है? जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे, वो कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे क्लास, आर्मी, क्लास में ऑल टाइप ऑफ क्लासेस आ जाएंगी। आर्मी में ऑल टाइप ऑफ आर्मीज, बैंड एंड फ्लॉक। It represent group of all classes that include in collective noun, and collective noun is neuter gender. Some tables: masculine to feminine. मैस्कुलिन से फेमिनाइन किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं ये देखो। We can change the masculine gender into feminine gender by a change of word. जो फर्स्ट टेबल दे रखी है उसमें वर्ड को चेंज किया गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल masculine, feminine, यहाँ पे फर्स्ट जो वर्ड है वो है हस्बैंड, तो हस्बैंड का फेमिनाइन जेंडर क्या आ जाएगा? वाइफ। दीज आर अपोजिट वर्ड। सन, हस्बैंड पति, एंड वाइफ पत्नी। एंड सेकेंड इज सन, अपोजिट वर्ड डॉटर। कॉक, हन, एंड नेक्स्ट ब्रदर, सिस्टर। Opposite word king is queen, bull, cow. Next table, by a change of the ending. इसमें क्या किया है? जो नेक्स्ट टेबल, इसमें जो फर्स्ट हमारी टेबल दे रखी है उसमें पूरे वर्ड चेंज हुए, ठीक है। जो फेमिनाइन में कन्वर्ट करते टाइम पूरे वर्डिंग की चेंज हुई है, और इस सेकंड टेबल में जो वर्ड है उनका एंड है वो चेंज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैस्कुलिन, फेमिनाइन, हीरो,
फर्स्ट वर्ड इज हीरो, इन फेमिनाइन फॉर्म हीरोइन। तो इसका जो एंड है वो चेंज हो गया, हीरो सेम रहा है और लास्ट में क्या ऐड हो गया, INE, हीरोइन। गॉड, गॉड्स, ऑथर, ऑथर्स, विडोवर, विडो, लर्न, लायंस, एक्टर, एक्टर्स। तो इस प्रकार इस टेबल में जो वर्ड की एंडिंग में चेंज हुआ है, ठीक है। एंड नेक्स्ट, बाय रिप्लेसिंग वर्ड्स आफ्टर एंड बिफोर। तो इस टेबल में क्या करना है, जो वर्ड है उसकी लास्ट में या फिर पहले थोड़ा चेंज हो जाएगा तो वो फेमिनाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है लैंड लॉर्ड, इन फेमिनाइन फॉर्म लैंड लेडी। यहाँ पे लॉर्ड की जगह क्या आ गया, लेडी। तो जो लास्ट वाला वर्ड है वो क्या आ गया, चेंज हो गया, थोड़ा आगे वाला सेम रहा है, लैंड, दोनों में लैंड है और लॉर्ड की जगह आ गया लेडी, ठीक है। पिकॉक, पीहन, मिल्कमैन, मिल्कमेड, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। इन वर्डों में क्या हुआ था, पहले वाले में, पहले जो 3 वर्ड्स है उनमें लास्ट में चेंज हुआ है, ठीक है। और इस वर्ड में स्टार्टिंग में फादर की जगह आ गया मदर, ठीक है। एंड नेक्स्ट, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, ब्रिजगोम, ब्रिज, स्टेपसन, स्टेपडॉटर। चेंज इन एंडिंग, मैन सर्वेंट, maid servants. Okay students, these are the tables of masculine to feminine. Next exercise, masculine, feminine. Complete the table with appropriate masculine and feminine nouns. तो यहाँ पे इनको कंप्लीट करना है। अगर किसी में मैस्कुलिन दे रखा है तो उसका फेमिनाइन राइट करना है, और किसी का अगर फेमिनाइन दे रखा है तो वहाँ पे मैस्कुलिन को राइट करना है, ठीक है। ब्रदर, ब्रदर का क्या होगा, सिस्टर। कुक, इन फेमिनाइन फॉर्म वी राइट हन। नेफ्यू, इन फेमिनाइन फॉर्म नाइस। फोर्थ, husband, in feminine form wife, line, lines, father, mothers, son, daughter, and queen, masculine form king, actor, actors, bridegroom, feminine form breeze. ओके स्टूडेंट्स, आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, और टेबल्स एंड 4 काइंड ऑफ जेंडर, मस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, इट्स डेफिनेट्स एंड एग्जाम्पल। इट्स योर होमवर्क, स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय स्टूडेंट्स।